Okay. So last time we have seen the union, intersection, differences and complements. Now let us see the same concept using intervals. Okay. So what is intervals? We have the basic 4 types of interval. The first one is called open interval, in which all the numbers between A and B are included, but not the end point. A को भी include नहीं करना है, B को भी include नहीं करना है. This is called as a open interval. Second type interval is called as a closed interval, where closed interval में क्या होता है? We have to take all the points between A and B and we have to include A as well as B. So open interval जब आपको draw करने बोलेंगे, so what you will draw? We have 2 points A and B. If you exclude those points and consider all this particular thing, then you will have open interval AB. When you make a hollow circle, if you fill this circle, that means you are included A and you are including B, where you get the closed interval. So open interval, closed interval हो गया. Now these two interval are called semi-closed or semi-open interval. So for example, if I include B but not include A, then we'll get this type of interval. All the numbers between A and B, A is not included, but B is included, then we'll get the semi-open type of interval. And if we consider a set where A is included and B is not included, then this kind of set is called a semi-closed interval, where A is included, B is not included. Okay. Okay. Next, let us take the example so that this concept will become clear. Similarly, we can have the infinity into the picture. Infinity we can use on the both sides, that is positive infinity and negative infinity. So first interval is of the form A से start होगा and it goes on and on. So this kind of interval is called A to infinity. You can include A के यहाँ पे अगर आप hollow circle बनाओगे तो आपको open interval मिलेगा. अगर A के यहाँ पे आप closed circle बनाओगे तो आपको A को include करना पड़ेगा. Similarly, minus infinity to B and minus infinity to B close. So this kind of interval are unbounded interval that you can take. Let us move on to the next. Let us take example so that this concept will become clear. Consider this. Let universal set be set of real number and let we define this intervals A. A is the interval -1 to 0. What does this mean? You can see in this particular bracket -1 को हमने क्या किया है, hollow circle draw किया, मतलब -1 is not included. 0 पे हमने filled circle draw किया, मतलब 0 is included. So A is a set from -1 to 0. All the numbers will be there. -1 will be not there and 0 will be there. B is a set of interval from 0 to 1. 0 is included and 1 is not included. So 1 के यहाँ पे hollow circle है and 0 के यहाँ पे filled वाला circle है. That means 0 is included, 1 is not included in set B. So ये number line पे draw किया. Now tell me how you can draw A intersection B. फटाफट बोलो, चलो A union B कैसे draw करोगे? That is -1 to 0, 0 included and -1 not included, union with
the set 0 to 1. How you will draw this set? कैसे ड्रॉ करोगे? 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है. टेल मी. पहले तो 0 -1 और 1 को हॉलो बनाएंगे बाकी. राइट. तो अपने को -1 to 0 सब नंबर कवर कर रहा है ए में, तो सब नंबर आ जाएंगे. 0 से 1 में से भी सब नंबर कवर कर रहा है, सब नंबर आ जाएंगे. 0 दोनों सेट में है तो 0 भी आ जाएगा. अभी क्या बचता है? अभी बचता है मेरा -1 एंड 1. बट -1 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ए में नहीं है -1, तो ए में से भी हम लोग हटा देंगे. और 1 भी नहीं है बी में, तो 1 में से भी हटा देंगे. तो आपका इंटरवल क्या बनेगा? -1 to 1. So we can write this interval as -1 to +1. Both are not included. Okay. So this completes A union B. What is A intersection B? Which element is common in both? 0. Only 0 is common. So we can write singleton set 0, which is common in A as well as B. अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है? B minus A. What is the definition of B minus A? कोई डेफिनेशन बता सकता है? It is all x which belongs to B such that x does not belongs to A. Right? This is by the definition of difference. All the elements which belongs to B which does not belongs to A. Now tell me which are the elements which belongs to B but does not belongs to A. B में कौन कौन से एलिमेंट है भाई? 0 से 1 तक लेके सब एलिमेंट है और 0 भी है. कौन से एलिमेंट A एंड B में कॉमन है? 0 इज कॉमन है, तो 0 को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट B में होंगे. So I can write this set like it is the set 0 to 1. ये मैंने क्यों लिया? यहाँ पे B में यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट है. कौन सा कॉमन एलिमेंट है? 0 वाला जो एलिमेंट है ये और ये कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सब B के एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है. तो बाकी सब एलिमेंट इंक्लूड करना है मतलब क्या? मुझे ऐसा इंटरवल बनाना पड़ेगा 0 एंड 1 के इसमें सभी नंबर्स इंक्लूड होंगे बट 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 0 कॉमन है. तो हमारा इंटरवल क्या बन जाएगा? सॉरी, यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा 1 के यहाँ पे, तो 0 to 1 ओपन इंटरवल बन जाएगा. ओके. नाउ टेल मी व्हाट इज A कॉम्प्लीमेंट? A कॉम्प्लीमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? व्हाट इज इट सेट? इट इज ऑल x बिलोंग्स टू R such that x does not belong to A. Tell me which are the elements belongs to A. कौन से elements है? Let us draw it again. A में कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं? Can I say 0 belongs to A? Anyone? Yes. तो 0 अगर बिलोंग करता है तो A कॉम्प्लीमेंट से उसको एक्सक्लूड करना है. A कॉम्प्लीमेंट से उसको एक्सक्लूड करना है. 0 से 1 के लेके सब एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो उनको क्या करना है? एक्सक्लूड करना है. मतलब उनको हमको A कॉम्प्लीमेंट में नहीं लेना है. यहाँ पे A में जो एलिमेंट्स है उसको A कॉम्प्लीमेंट में नहीं लेना है. -1 A में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में उसको क्या करना है? लेना है. समझा? तो 0 एंड 1 एंड पॉइंट्स पे हम लोग देखेंगे. 0 बिलोंग करता है इसलिए उसको नहीं लेना है, उल्टा करना है ना. -1 बिलोंग नहीं करता है इसलिए उसको लेना है. अभी -1 के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है तो A कॉम्प्लीमेंट में उसको क्या करना है? बिलोंग करवाना है. सिमिलरली 0 के राइट हैंड साइड पे क्या है? कोई भी एलिमेंट A में बिलोंग नहीं करता है तो 0 के राइट हैंड साइड में भी सभी एलिमेंट्स को हमको लेना है. So what we will get? This is the set
पहला क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक चला जाएगा. सो आई विल राइट दैट सेट माइनस इंफिनिटी टू -1. -1 को हमको इंक्लूड करना है, इसलिए -1 के यहाँ पे ये आ जाएगा. यूनियन सेकेंड सेट क्या है, 0 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा. 0 को हमको इंक्लूड नहीं करना है. हमेशा याद रखो, इंफिनिटी एंड नेगेटिव इंफिनिटी के बाद हमेशा आपको राउंड ब्रैकेट ही यूज करना है. जब भी इंफिनिटी आएगा या माइनस इंफिनिटी आएगा तो आपको कौन सा यूज करना है, आपको राउंड ब्रैकेट ही यूज करना है. बिकॉज दिस इज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर. ये कभी भी रियल नंबर का हिस्सा नहीं होते हैं. इट इज अ notation to denote that it is the belongs to this particular set. Okay, now let us go further. ये क्वेश्चन हो गया पूरा. ओके, अभी मुझे बोलो, यहाँ पे मेरा अगर 0 1 होता और यहाँ पे 0 1 दोनों भी ऐसे होते तो मेरा यूनियन क्या आता. I will ask you another question on the based on same line. What is if I write 0 1 union -1 to 0? How will I write this union? Let us draw the diagram. पहला सेट कौन सा है, 0 to 1. 0 को इंक्लूड करना है क्या, नहीं करना है. 1 को इंक्लूड करना है क्या, नहीं करना है. तो 1 के यहाँ पे भी हॉलो सर्कल बना देते हैं और बीच के सभी एलिमेंट इंक्लूड करने. अभी नेक्स्ट क्या है, -1 to 0. सो -1 यहाँ पे आएगा, -1 को इंक्लूड नहीं करना है एंड हम लोग को ये सेट मिलेगा. ओके, सो व्हाट इज द सेट, यूनियन में क्या मिलेगा मुझे, यूनियन में मुझे 0 नहीं मिलेगा. सो आई कैन नॉट राइट दिस इज इक्वल टू -1 to 1. ओके, दिस इज नॉट करेक्ट. व्हाट आई कैन राइट, दिस इज इक्वल टू -1 to 1 माइनस सिंगलटन 0. तो मुझे -1 to 1 में से 0 को डिलीट करना है, तो जो भी मिलेगा मुझे वो यूनियन मिलेगा. तो ये एक्स्ट्रा है आपका. ये बात आप ध्यान में रखो. डायग्राम बनाते वक्त आपको ध्यान से डायग्राम बनाना है इंटरवल का, so that you will get correct union and correct intersection. What will be the intersection of these two sets? If I write 0 1 intersection -1 to 0, क्या आएगा इंटरसेक्शन, empty set. empty set. There is no element which is common between 0 1 and -1 0. So this is also important. Let us move further to the next topic. So ये सब टॉपिक्स है, आपने रिवाइज करना है. ओके, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ये हम नहीं करेंगे. इनफाइनाइट यूनियन का क्या होता है, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन का क्या होता है, we will skip this point. Next point is empty set. Okay, so what is empty set? empty set क्या होता है, where there are no elements in the set. the empty set is defined as a set which has no element. जैसे हम लोग 0 define करते हैं, it is not positive not negative. The similar kind, 0 is not an empty set. Okay, we have the set which has no element, then we define this set to be a empty set. For example, ये जो set उन्होंने define किया है, all the x belongs to R such that x square is equal to -1. Is there any element which square is -1 in real number? No. No. So this set is a empty set. Okay. कभी कभी आपने कोई इंटरसेक्शन मिलता है जिसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, तो वो कैसे डिनोट करना है, we have to denote it by
empty set. We will use letter pi to denote empty set. So generally Greek letter जो pi होता है वो हम लोग empty set के लिए use करते हैं. या फिर we can write the empty set by empty symbol. If you just write opening bracket and closing bracket, then it is notation is also known as for the empty set. So दोनों में से कोई भी notation आपको empty set के लिए use कर सकता है. हम generally we use this Greek letter phi as a empty set. So let us write this particular set so that this concept will become clear. ये delete कर देते हैं यहाँ से. Okay. इससे पहले एक और एग्जांपल करते हैं, फिर हम लोग आते हैं एम्प्टी सेट पे. ओके, कैन यू राइट दिस सेट? ए पार्ट में क्या है? A is equal to ABC, B is equal to BCD, and C is equal to BCE. Find A union B intersection C, A union B bracket intersection C, and A union B intersection A union C. Okay. So सबसे पहले ये सब जो चीजें सॉल्व करनी अपने को, उसमें क्या चाहिए अपने को? बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए. तो पहले ये सेट फाइंड करते हैं. व्हाट वी विल फाइंड? वी विल फाइंड फर्स्ट दिस सेट. सिर्फ इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं अभी के लिए. ओके, टेल मी, ए आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास कौन सा सेट नहीं है? बी इंटरसेक्शन सी आपके पास नहीं है. तो सबसे पहले हम लोग इवैल्यूएट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी को. So what is B intersection C here? क्या होगा? Which element are common in B and C? So आपने B intersection find किया. Now हम लोग कर सकते हैं A union in the bracket B intersection C. इसको कैसे लिखेंगे? A का सेट लिखो पूरा. क्या है? A, B, C union. What is B intersection C? We got B, C. Okay. तो ये हो गया. अभी let us ये हो गया. अभी नेक्स्ट सेट कौन सा है? नेक्स्ट सेट है A यूनियन B इंटरसेक्शन C. तो पहले हम क्या करेंगे? What is the first bracket? A union B. उसको काउंट करेंगे. So let us count that A union B. Okay, A union B को काउंट करते हैं. What is A union B? A, B, C, D. A, B, C and D. C, so let D. us write A union B है. तो A B भी आएगा and C D भी आएगा. The elements which belongs to A, or it belongs to B, or it belongs to both the set, they are the elements of union. So what is the set? A intersection. ये B को हटा देते हैं क्योंकि B is not here. B is the second part का अलग ही है क्वेश्चन. तो B नहीं है, हम लोग नीचे ही करते जा रहे हैं. A union, sorry, let us erase this completely. ठीक है. Now first bracket is A union B intersection with C. Let us write this set. A union B क्या है? A, B, C and D. Intersection ले लो with C. Intersection with C क्या है? B, C and E. What is this intersection? कौन से element common है? BC. BC. So can I say this set, this is set 1 and this is set 2 are equal? इसका हमने No. आंसर नहीं लिखा. Yes, sir. Can I Yes, say sir. this They are two not sets equal.
they are not equal. So let us write down this further set. एक ही set में लिखते हैं इसको. This is equal to union है तो क्या आएगा? ABC. Okay. So these two sets are not equal. What is the third set in this? Third set क्या है? A union B intersection A union C. So A union B हमारे पास already है. अपने को A union C निकालना पड़ेगा. So what is A union C? Can you tell me what is A union C? देख के बताओ. A B C E. A, B, C and E. The elements which belongs to either of the set. A में भी होंगे, C में भी होंगे, तो हमको इसको include करना है. Now tell me what is A union B intersection with A union C. Okay. ABC. So let us write the set so that this concept will become clear. That is ABCD. That is the set A union B and intersection with A intersection A union C क्या है? ABC. So now अब ये intersection लो A, B, C. Which are the elements in common in these two sets? We got the set again A, B and C. So this is 3. So from 1 and 3 we can write that this set and this set are equal. So first set A union B intersection C and A union B intersection A union C are equal. So ये दो set है जो equal है and ये वाला set equal नहीं है. So इसको अलग कलर से highlight कर देते हैं. This set is not equal to any of this set. जो पीले में हमने ड्रॉ किया है वो इक्वल सेट है. And this is known as the distribution law. ये जो स्टेटमेंट है A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. This statement of distribution law. So law से भी आप इक्वल करा सकते हो. Now tell me about this. ये मैं एक्सरसाइज देता हूँ. B पार्ट आपको खुद करना है इंटरसेक्शन का. सेम वे से करना है. जो ब्रैकेट है उसको पहले इवेल्युएट करना है एंड देन आपको इंटरसेक्शन लेना है. इंटरसेक्शन यूनियन जो भी है पहले ब्रैकेट को इवेल्युएट करना है बाद में करना. व्हाट अबाउट थर्ड थिंग? थर्ड वाला करते हैं. सो लेट मी गेट दिस पर्टिकुलर ओवर हियर. करते हैं कोई अलग प्लेन से लेते हैं. अभी मुझे बताओ A माइनस बी क्या होगा? What will be the set A minus B? The elements which are present in A but not in B. Which are the elements? Only singleton A. What we want B minus C also. So B minus C भी करते हैं. What is B minus C? Which are present in B D. but not in C. Singleton D. Singleton D. Which are present in B but not present in C. C के एलिमेंट को हटाना है आपको. ठीक है, अभी करो. What we want AB minus पहला सेट कौन सा है? A minus B in the first bracket minus C. That is A minus B अपने को क्या मिला? A minus what is C? B, C, E. Which elements which are present in A minus B but not present in BC? कौन सा एलिमेंट है ऐसा? A is present in A minus B but A is not present in C. So we got this answer. What about next? A minus in the bracket B minus C. तो ब्रैकेट को हमेशा पहले इवेल्युएट करना है. तो A का क्या लिखेंगे आप? A B C and B minus C आपको क्या मिला? Singleton D. So which are the elements which are present in A but not present in B minus C?
कौन से एलिमेंट है? ऑल द थ्री एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए इज नॉट प्रेजेंट इन बी माइनस सी, सो वी कैन राइट द सेट एज ए बी एंड सी. तो आपको क्या मिला? These two are not equal. These two are not equal. So what does this property says? Property says that subtraction of the set is not commutative. In general, subtraction is not commutative. आपने अगर addition किया तो addition आपका sorry associative आता है. Addition आपका associative आता है. मतलब क्या है? If I have three numbers 2 plus 3 plus 5, I can have this 2 plus 3 plus 5 is same as 2 plus 3 plus 5. अगर मैं 3 and 5 को पहले ऐड करता हूँ या 2 and 3 को पहले ऐड करता हूँ, आंसर तो सेम ही आने वाला है. ओके, बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता. 1 minus 2 minus 3 is not same as if I write 1 minus 2 minus 3. Understood? What is the left hand side answer? What is left hand side answer? 1 minus 2 is minus 1, minus 1 minus 3 is minus 4. Right hand side answer क्या होगा? 1 minus 2 minus 3 पहले करेंगे. 2 minus 3 is minus 1, minus minus will become plus. We got right hand side to be equal to 2. So subtraction is not a associative operation. मतलब इसमें हम ब्रैकेट कैसे पुट करते हैं उसको इम्पोर्टेंस होता है. एडिशन में वैसा इम्पोर्टेंस नहीं होता है. एडिशन में कौन सा ब्रैकेट आप -4 ही आएगा ना. पहला क्या आएगा? 1 minus 2 का आंसर क्या आएगा? -1, -1 minus 3, -1 से yes sir, -4 आएगा. ये वाला क्या आएगा? 1 minus in the bracket -1. ब्रैकेट में -1 है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 1 + 1 2 हो जाता है. तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ commutative associative operation. It is also not commutative, but it is also not associative. So ये हर एक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे. ओके, तो ये आपको बी पार्ट खुद से करना है. हमने ए पार्ट सॉल्व किया है, सी पार्ट सॉल्व किया है. ओके, लेट अस गो ऑन टू द next question, which is very important theoretically. Is the number 0 belongs to the empty set? What do you think? No. Why it is not belongs to empty set? 0 does not belong to 0 is an element. Sorry, 0 does not belongs to empty set, as empty set does not contain any element. क्या रीजन दोगे? Empty set does not contain any element. तो एलिमेंट शॉर्ट में लिख देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. What about this? Is empty set equal to empty set? What is the answer to the second question? Again, no. Okay, why it is no? Empty set doesn't have any element. Doesn't have any element, whereas when I write like this, is a set. What does this mean? This is the set which contains empty set. तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है मैथमेटिक्स में. यू कैन डिफाइन द नंबर
like this set, this is like this, these are the different element. Understand the notation here. And so on. The all are different. First set is empty set. इस सेट का देखो एलिमेंट कैसा है, सेट इज एम्प्टी सेट. सेकंड सेट का क्या है, इट इज अ सेट कंटेनिंग एम्प्टी सेट. थर्ड सेट को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज अ सेट which contains a set which contains an empty set. फोर्थ को कैसे डिफाइन करोगे, a set which contains a set which contains a set which contains an empty set. ओके, तो आपको ऐसा सीक्वेंस मिल जाएगा, इसको हम लोग नेचुरल नंबर का सीक्वेंस बोल सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 so on is 1-to-1 correspondence with the set of natural numbers. So you can define the sets like this. Okay, so this for your reference. So let us erase this all. Okay, third part. Third part में क्या करेंगे, what is C question? Is empty set belongs to the set of empty set? Answer is yes. Yes. Empty set will belongs to set containing empty set. What is D? Is empty set belongs to the empty set? Empty set does not belongs to the empty set because why it is not so? क्यों नहीं है ये, क्योंकि empty set में कुछ है ही नहीं. Empty set doesn't have any element, not even empty set. So these are the confusing questions which comes in your mind. So be clear about this. Zero empty set में नहीं होता है. Empty set is not equal to set containing empty set, but we can also say empty set will belongs to the set containing empty set, and empty set does not belongs to the empty set. अगर हमने बोला empty set belongs to empty set, then empty set में element आ जाएगा, वो possible नहीं है, doesn't have any element. तो ये थोड़ा confusing वाला thing है जो आपको ध्यान में रखना है. That's why I took particularly this question. ये इरेजर नहीं काम करेगा यहाँ पे. Okay. So let us move on to the further thing. अपने थ्योरी में जाते हैं. एम्प्टी सेट का हो गया, तो आप एग्जांपल दे सकते हो. फॉर एग्जांपल दिस सेट D. Can I say D is an empty set? Can I say D is an empty set? Anyone? क्या लगता है? What is D set? The set of all elements in the real number. So real number है तो आपको क्या ड्रॉ करना है, जल्दी जल्दी से बताओ. You have to first draw the number line. कभी भी रियल नंबर का क्वेश्चन आया तो ड्रॉ द नंबर लाइन. What is the numbers x belongs to R? 3 से बड़ा होना चाहिए. 3 से बड़ा होना चाहिए मतलब इस साइड का नंबर चाहिए मुझे, और 2 से छोटा होना चाहिए मतलब इस साइड का नंबर चाहिए. Is there any number which are satisfying both the property? 3 के राइट साइड में होना चाहिए, 2 के लेफ्ट साइड में होना चाहिए. क्या ऐसा कोई नंबर मिलेगा क्या हमें? Anyone? Hello? So we got this set as to be a empty set. क्यों empty है? क्योंकि आपको 3 के राइट हैंड साइड पे नंबर चाहिए और 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर चाहिए. ऐसे कोई एलिमेंट है ही नहीं. बट अगर मैं 2 लेस देन x लेस देन 3 लिखता तो मुझे बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं कि नहीं. इफ आई राइट लाइक दिस 2 लेस देन x लेस देन 3, देन आई विल गेट इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट्स. जो 2 एंड 3 के बीच में सभी एलिमेंट आ जाते हैं उसमें. बट अपना उल्टा दिया है, 3 के राइट हैंड साइड पे चाहिए, 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए. ऐसा तो एलिमेंट हो ही नहीं सकता.
So this is a empty set. What about the second set? Why it is empty set? Integer. There is no Integer है. integer. करेक्ट. इंटीजर है. इंटीजर अपने को 2 and 3 में कोई इंटीजर मिलेगा क्या? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है. अगर यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं होती, फॉर एग्जांपल 2 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 3 ऐसे सेट होता तो मैं लिख सकता था कि 3 बिलोंग्स टू दिस सेट. बट यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसीलिए कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? वी कैन राइट दिस सेट टू बी अ एम्प्टी सेट. ओके, so let us move on to the next concept. Let me just see the group. What happened? Network problem. Okay, nothing else. ठीक है. Okay, so ये हो गया. Let us go. Just let me admit the people. Okay. Now next. Partition of the set. तो पार्टीशन में ना 2-3 डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. फर्स्ट डेफिनेशन इज डिसजॉइंट सेट. अगर कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन आपको एम्प्टी मिलता है तो आपको क्या बोलोगे उसको? इफ यू गेट एनी टू इंटरसेक्शन इज एम्प्टी देन यू कॉल दिस सेट टू बी अ डिसजॉइंट. डिसजॉइंट का मतलब क्या है? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं. सिंपली मीनिंग यही है, डिसजॉइंट का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है 1 2 3, सॉरी ए में है 1 3 5, बी में है 2 4 6. कैन आई देयर इज एनी कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी? कॉमन है क्या कोई एलिमेंट? नहीं. तो आई कैन से दैट दिस आर डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट मतलब इंटरसेक्शन इज एम्प्टी. इतना ही ध्यान रखो. ठीक है. अगर आपके पास बहुत सारे सेट है तो हम लोग को कंसेप्ट आता है म्यूचुअली डिसजॉइंट. म्यूचुअली डिसजॉइंट क्या होता है कि उसमें से कोई भी दो सेट अगर मैंने उठा दिए तो उनमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए. मतलब क्या है? अगर आप सपोज एक क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, let me give you the example so that this concept will become. Suppose you have the classroom. ठीक है, आपके पास सीट्स है, बेंचेस है, हर बेंच पे एक ही बैठा है, सब एग्जाम चालू है. अगर एग्जाम चालू नहीं होती तो मुझे पता है तुम लोग साथ में ही बैठते, 3-4 लोग एक ही बेंच पे बैठते, भले वो ये नहीं होगा नहीं होगा, वो हमको पता है. तो सपोज रो में अरेंज है. सपोज आई विल कंसिडर अ सेट फर्स्ट रो, then I will second set will consider to be a second row, and third set I will consider to be a third row. So can there be a common element in these three sets? A1 A2 A3 में कोई element common है क्या? नहीं common होगा ना. All the elements are different over here, so we can say that these are mutually disjoint. Mutually disjoint मतलब क्या है? A1 intersection A2 should be empty. 3 सेट म्यूचुअली डिसजॉइंट है, मतलब क्या है? A2 इंटरसेक्शन A3 टू बी एम्प्टी, एंड यू विल रिक्वायर A1 इंटरसेक्शन A3. कोई और पॉसिबिलिटी है क्या 3 सेट का? 3 सेट में से 2 सेट निकालने हैं तो मुझे A3 पॉसिबल मिलेगा, या तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी मिलेगा, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी मिलेगा, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी मिलेगा, जब मैं इन तीनों में से कोई भी दो सेंटर का इंटरसेक्शन लेता हूँ. तो ऑल जो पॉसिबिलिटी है AI एंड AJ, सभी पॉसिबिलिटी में इंटरसेक्शन अगर आपका एम्प्टी सेट आ रहा है तो आप क्या बोलोगे उसको? इफ ऑल दिस पॉसिबिलिटी AI एंड AJ, जो दो अलग अलग सेट है, उसका इंटरसेक्शन आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? म्यूचुअली डिसजॉइंट. सो दो डेफिनेशन है डिसजॉइंट. अगर दो ही सेट है तो डिसजॉइंट कब बोलेंगे? जब इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा. अगर बहुत सारे सेट है तो डिसजॉइंट कब बोलेंगे? उन बहुत सारे सेट में से कोई भी दो एलिमेंट उठा दो, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आना चाहिए. लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट. कैन आई से दिस सेट A1 A2 A3 आर म्यूचुअली डिसजॉइंट? Yes. क्यों डिसजॉइंट है? यस और नो करने से पहले हम लोग को पहले देखना पड़ेगा
व्हाट इज A1 इंटरसेक्शन A2? A1 एंड A2 का इंटरसेक्शन क्या है? कोई एलिमेंट है क्या उसमें? इट इज एम्प्टी सेट. What is A1 intersection A3? Is there any element between A1 and A3 common? वो भी empty है. And what is A2 intersection A3? empty. A2 intersection वो भी empty है. तो all three possible intersection जो भी possible है सब intersection empty है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? These three are mutually disjoint. So ये statement true है. What about the second statement? B1 is equal to 2, 4, 6. B2 is equal to 3, 7. B3 is equal to 4, 5. Are they disjoint? No. These are not disjoint. Why it is not disjoint? Q disjoint mutually. 4 is common B1 and B3. As I can write B1 intersection B3 is not empty. तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है, ये हमको डिस्प्रूव करना था. तो डिस्प्रूव करना था एक ही एग्जांपल काफी था, बट जब हमको प्रूव करना था कि वो म्यूचुअली डिसजॉइंट है तो तीनों पॉसिबिलिटी हमने चेक किया. तो जब प्रूव करना है तो हर एक पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ता है, बट जब डिस्प्रूव करना है या फिर किसी को फॉल्स बताना है तो आपको एक ही एग्जाम्पल काफी होता है. अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? ये लॉजिक में हमेशा ध्यान रखो. प्रूव करना है तो हर एक पॉसिबिलिटी में उसको ट्रू होना ही पड़ेगा. अगर फॉल्स करना है तो आपको एक ही एग्जांपल काफी हो जाएगा उसको फॉल्स साबित करने में. ओके, so let us move further. Let us erase all this. ठीक है, now we come to the partition of the set. पार्टीशन क्या होता है? एक बड़े सेट को आप उसके छोटे छोटे सबसेट में डिवाइड करते हो, बट वो जो छोटे छोटे सबसेट है उनके ऊपर दो कंडीशन आपको देनी है. मतलब कि यहाँ पे वो डायग्राम में आप देखो ए को कैसे डिवाइड किया है, चार सेट में डिवाइड किया है. A1, A2, A3 एंड A4. आप पार्टीशन करते हो, कमरे का पार्टीशन करते हो या क्लासरूम का पार्टीशन करोगे तो आप पार्टीशन मतलब क्या करते हो? व्हेन यू, जब आप घर में पार्टीशन बोलते हो तो आप क्या बोलते हो? डिवाइड करके डिवाइड करते हैं या फिर उनको दो हिस्सों में बांटते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग जो भी बोलते हैं कि से इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो व्हाट डज वी मीन बाय दैट पार्टीशन? आपने एक बड़े कंट्री को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया. उन दो हिस्सों में कुछ कॉमन होगा क्या? Right. कॉमन तो नहीं होगा. पार्टीशन का मतलब है कॉमन नहीं होना चाहिए. और दूसरा क्या चाहिए आपको? कि दोनों को अगर मैंने फिर से जोड़ दिया तो मुझे पूरा भाग मिलना चाहिए. राइट, वो भी चाहिए ना. मतलब मैं क्या ऐसे पार्टीशन कर सकता हूँ कि घर में मेरे दो भाई है और मैं तीन हिस्से बनाऊंगा. पहला हिस्सा पहले भाई को, दूसरा हिस्सा दूसरे भाई को, और तीसरा हिस्सा कोई भी यूज नहीं करेगा. ऐसा चलेगा क्या? पार्टीशन नो. सो व्हाट वी वांट, अगर मैं पार्टीशन के बाद जो भी मुझे सबसेट मिलते हैं उनको एक साथ जोड़ दूं तो मुझे फुल सेट वापस मिलना चाहिए. और कोई भी दो भागों में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए. दैट इज द मेन थिंग, राइट? तो इसीलिए हम लोग ये डेफिनेशन में जब हम लोग पार्टीशन ऑफ द सेट लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? दो चीजें लेते हैं. फर्स्ट चीज क्या है? ए इज यूनियन ऑफ ऑल एज. मतलब जितने भी पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है वो सब पार्ट्स का अगर आप यूनियन लोगे तो आपको ए वापस मिलना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, राइट? जो मैंने बोला कि आपको कोई भी एलिमेंट को छोड़ना नहीं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो भाई है और आपने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया. ऐसा नहीं चाहिए. कोई भी एलिमेंट होगा तो वो एटलीस्ट एक सेट में प्रेजेंट होना चाहिए. व्हाट डज दिस फर्स्ट स्टेटमेंट मीन? कि अगर मैंने कोई भी एलिमेंट ए से उठाया तो आइदर A1 में होना चाहिए या फिर A2 में होना चाहिए या फिर A3 में होना चाहिए या फिर A4 में होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी में नहीं है. A1 में भी नहीं है, A2 में भी नहीं है, A3 में भी नहीं है, A4 में नहीं है, और अब मैंने बोल दिया कि A1, A2, A3, A4 आर पार्टीशन. अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? फर्स्ट प्रॉपर्टी समझा आपको?
Yes. प्रॉपर्टी सेज कि कोई भी एलिमेंट मैं ओरिजिनल सेट से उठाता हूँ तो कोई भी एक सबसेट में होना चाहिए, A1 A2 A3 A4 जितना भी मैं डिवाइड करूंगा उसमें से कोई भी हिस्से में वो होना चाहिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी. व्हाट डज द सेकंड प्रॉपर्टी सेज? देयर शुड बी नो कॉमन एलिमेंट. A1 एंड A2 में कॉमन एलिमेंट नहीं होने चाहिए, A2 A3 में कॉमन एलिमेंट नहीं होने चाहिए, A1 A3 में कॉमन एलिमेंट नहीं होने चाहिए, A1 A4 में कॉमन एलिमेंट नहीं होने चाहिए. मतलब कोई भी दो मैं पार्टीशन में से सेट उठाता हूं उन दोनों में कॉमन एलिमेंट हमको नहीं चाहिए. ओके, सो अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन. पार्टीशन बोले तो दो कंडीशन. पहला Yes. कि वो यूनियन होना चाहिए, सब पार्ट को मैं वापस जोड़ दूं तो मुझे पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, और दो सबसेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए. तो इसके क्वेश्चन करेंगे. लेट अस राइट दिस पर्टिकुलर. Let A is equal to 1 2 3 4 5 6, A1 is equal to 1 2, A2 is equal to 3 4, A3 is equal to 5 6. Is this partition? Yes. It is a partition. So partition को हम लोग कैसे करते हैं? A को लिखते हैं पहले, उसके तीन भागों में डिवाइड किया. A1 में क्या है? 1 2 है. A2 में क्या है? 3 4 है. एंड A3 में क्या है? 5 and 5 6 5. If I take all the union A1 union A2 union A3, क्या मुझे A वापस मिलेगा? Yes sir. Yes. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है. What about the second property? सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है? ये दोनों इंटरसेक्शन लो, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? Is there any common between No. these two sets? No. No. No sir. Is there any common between these two sets? No. No sir. Is this common between these two sets? कोई चीज कॉमन है क्या? No sir. No. तो तीनों पॉसिबिलिटी चेक कर दिया, कोई भी पॉसिबिलिटी में कॉमन एलिमेंट अपने को नहीं मिले, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या बोलता है? म्यूचुअली डिसजॉइंट भी सेटिस्फाई करता है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रू है, सेकंड प्रॉपर्टी ट्रू है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये पार्टीशन है? Yes sir. Yes, we can say that this is a partition of set. So I can write the answer as S. So let us take one more example on this partition. तो हम लोग अपनी नोटबुक में जाएंगे. ये डिलीट कर दिया, नोटबुक में जाते हैं. ठीक है. Let us answer this question. First question. ADE, BC and DF be the partition of the set ABCDEF. How you will answer this question? Okay, let me write that right. ये अपना पूरा सेट A है. अभी इसमें से पहला सेट क्या है? A, E and D and BC कहाँ पे? सेकेंड सेट में, तो यहाँ पे BC लिख देते हैं. और थर्ड सेट में क्या है? D and F. So D is a common in third set. Can I say this is a partition? क्या लगता है आपको? डायग्राम से बताओ. No. पार्टीशन क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमन एलिमेंट है. Common. D D कॉमन is है. a common element. D कॉमन है. तो डायग्राम से फटाफट से समझ में आया आपको कि पार्टीशन क्यों नहीं है फर्स्ट सेट. सो ए में आप आंसर लिख दो. आंसर आपको कैसे लिखना है? नो एज दिस इंटरसेक्शन ADE and the second intersection with D and F is not equal to the empty set. क्यों नहीं है? क्योंकि म्यूचुअल डिसजॉइंट, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता. आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी भी देखना है, सेकंड प्रॉपर्टी भी देखना है. कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता? ये सेकंड वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है. व्हाट अबाउट द सेकंड थिंग, बी पार्ट? आप बताओ मुझे. Let us write. What is Partition है. A1 union A2 union A3? पहले तो देखो कि क्या होता है. A1 union A2 union A3 क्या मिलेगा मुझे? A के सभी एलिमेंट लिखो.
W, X and V. What is A2? U, Y, Q. Any element is common? No. So U, Y, Q लिखा. And third is क्या है? P and Z. Is P and Z we have already written? No. तो V and U सेम है तो उसको डिफरेंस करते ये V है and second वाला जो है U है. So V, Y, U and third is P and Z. Is it giving back me the original set P, U, Q, V, W, X, Y, Z? Are I getting the original set back? Yes, sir. Yes. Yes. So first condition satisfy कर दिया. What about the second condition? Let us write A1 intersection A2. क्या आएगा? Empty set. Empty set. So I can write this as to be empty set. What is A2 intersection A3? Empty Is there set. any common? Again, same empty set. And what is A1 intersection A3? Empty set. Empty. So write down that therefore it satisfies both the conditions. Therefore it is a partition. तो जब चेक करना है तो दोनों के दोनों कंडीशन चेक करना है and therefore it is a partition. What about third set? Three part करो. 4 is common. 4 is common. So I can write just no. Why? आप कॉमन एलिमेंट लिखो कौन से सेट में कॉमन है कौन से 1 3 4 एंड 5 4 ना तो 5 4 V. इंटरसेक्शन 1 3 4 is not an empty set. So ये हो गया. What is D part? 6 is not present in V. I don't get A1 union A2 union A3. लिखो क्या आएगा यूनियन क्या आएगा 1 2 3 4 5 7 8 9. which is not equal to the original set A. What about last part? E part में क्या लिखेंगे Same A1 union A2. क्या है It is. it is a partition so I can write S because It's a partition. A1 union A2 union A2 A3 union A3. can it cover all the elements Yes. so write down all the elements 1 2 3, 3 5. 4 5 6 आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो 7 8. 8 which is equal to A and write down all the intersection क्या क्या intersection possible है A1 intersection A2 is it empty it is same as Eight. A2 intersection A3 A3. which is also empty set and which is same as A1 A3. intersection A3 all these three intersection are empty Empty. set therefore फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका आंसर क्या होगा इट इज अ पार्टीशन सो कंसेप्ट समझा पार्टीशन का Yes, okay sir. let us repeat this concept for the infinite set in tomorrow's lecture okay Okay, sir. okay so let us stop today's session over here just wait for 2 minutes I will download the attendance and then you can okay you can leave now Thank join you, the sir. next lecture don't start now this lecture again
Okay, sir. एंड अगेन आई एम सेइंग Okay, sir. जो नंबर से उनका अटेंडेंस नहीं लगेगा